everyone, so I hope you all are doing well. I am Tanupriya from Team Fantastico and मैं फिर से आप लोग के लिए एक बहुत ही important and बहुत ही interesting सा topic लेके आ गई हूँ and the topic is which skill is best for an internship. So before we start the video, I must say that if you like this video, then please do like, comment and subscribe this channel and also share with your friends. And if you want to do your internship, then I must say that do your internship in Fantastico and also please watch the full video and listen carefully. So without any further ado, let's get started. Okay, so before we start our main topic, that is which skill is best for an internship, I want to share some basic few points related with the term internship. बिकॉज मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इंटर्नशिप के बारे में बहुत ही मिनिमल चीज़ें पता है एंड बहुत एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है. कुछ ऐसे लोग हैं जो बस वर्ड सुन रखे हैं कि इंटर्नशिप होती है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इंटर्नशिप करनी तो है बट उन्हें पता नहीं है कि इंटर्नशिप एग्जैक्ट होती क्या है. So basically, an internship is an starting point where work experience offered by an organization for a very limited period of time. जब हम लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं उसमें क्या होता है, इंटर्नशिप 1 मंथ की भी होती है, इंटर्नशिप 2 मंथ्स की भी होती है एंड इंटर्नशिप 3 मंथ्स की भी होती है. इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द कंपनीज गाइडलाइन और कंपनीज रूल्स एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर सेल्फ दैट विच टाइप ऑफ इंटर्नशिप यू वांना डू. ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने महीने का इंटर्नशिप करना चाहते हो, लाइक 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ्स. बट अगर मैं फैंटास्टिको की बात करूं तो फैंटास्टिको में आपको रिसोर्स का जो इंटर्नशिप है वो आपको 1 मंथ का मिलता है. ऑपरेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजिंग एंड फाइनेंस का जो इंटर्नशिप है वो आपको 3 मंथ्स ड्यूरेशन का मिलता है. सो अगर आप चाहते हो कि फैंटास्टिको से इंटर्नशिप करना, सो बिल्कुल वेट मत करो एंड जाओ एंड अभी के अभी आप अपना इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो. Okay, now I am sharing a very important topic for today's video, that is which skill is best for an internship. So I am sharing at least 9 to 10 points related with this topic. Okay, the first skill is passionate. So you must always passionate regarding your work at the time of your internship. It shows that how passionate you are at the time of your work. पैशनेट होने से ये पता चलता है कि आप कितना रेडी रहते हो अपने वर्क को लेके एंड आप कितना एक्टिव हो अपने वर्क को लेके. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट ऑलवेज पैशनेट रिगार्डिंग योर वर्क. द सेकेंड स्किल इज एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्व. So it is very important and it must have that ability to solve the problem in a very quick way or in a very proper way. So if you are doing an internship, so it is not necessary that problem are coming and you already know about that. So you always ready and you always trying to learn that ability to solve the problem. The third skill is self-discipline. So I must say that self-discipline is very important in everywhere. It is necessary in everywhere. So you always in a self-discipline manner. When I talk about in internship, so internship में क्या होता है, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऑलरेडी सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं. यहाँ पे हम सेल्फ डिसिप्लिन का बात हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अगर आपको इंटर्नशिप में कुछ टास्क मिलती है, ऑब्वियसली आपको हमेशा टास्क मिलती है एंड उसके कुछ टाइमलाइन होते हैं कि आपको 2 दिन में ये टास्क सबमिट करना है. बट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द टास्क उस टाइम क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भी आपका डेडलाइन होता है उससे 1 दिन पहले कुछ बच्चे होते हैं जो सबमिट कर देते हैं. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंप्लीशन टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी उन्हें ध्यान में नहीं रहता है कि हमें टास्क सबमिट करना है. सो this is for those students who are not self-disciplined. So please always try to be a disciplined student in your internship period. The fourth skill is independent. So you always try to depend upon yourself, not depend upon anyone. So in your internship period, you always try to depend upon yourself. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई टास्क मिलता है तो आप खुद पे डिपेंड रहो कि मुझे ये टास्क खुद से कंप्लीट करनी है
दूसरों की हेल्प आपको तभी लेनी है जब आप वो टास्क नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, बहुत ट्राई करने के बावजूद, तब वहाँ पे आप किसी का हेल्प ले सकते हो, बट ऑलवेज ट्राई टू डिपेंड अपॉन योरसेल्फ। द फिफ्थ पॉइंट इज लीडर। ऑलवेज ट्राई एंड ऑलवेज थिंक दैट यू आर अ लीडर। जब आप ऐसा सोच के चलोगे तो आपकी जितनी भी टास्क है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एंड एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज मैं ये इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज मैं कोई भी इंटर्नशिप करती हूँ तो मैं हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहती हूँ एंड हमेशा मैं ये सोच के चलती हूँ कि मैं लीडर हूँ एंड मुझे अपना टास्क बहुत ही प्रॉपर एंड बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करके देना है। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी एट द टाइम ऑफ इंटर्नशिप। सो आप लोग भी ये एक बार जरूर ट्राई करना एंड आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा। The sixth point is communication skill. I know this skill is very necessary and मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि communication skills मतलब है कि आपको इंग्लिश ही आना ज़रूरी है, हिंदी बिल्कुल आना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मैं इसलिए ये बातें बोल रही हूँ बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, कई बार मैंने ऐसा देखा, इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अगर हम नहीं भी बोल रहे हैं, आगे वाला अगर हमसे कुछ बोल रहा है, तो एट द टाइम क्या होता है, हम अपनी बातें जो होती है वो उनके सामने रख नहीं पाते हैं। सो एट दैट टाइम क्या होता है कि हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाती है। सो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो ऑलवेज ट्राई टू कम्युनिकेट। अगर आप हिंदी में ही बात कर रहे हो नो प्रॉब्लम, बट बात यहाँ पे ये होती है कि आप अपनी बातें वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज ट्राई दैट कम्युनिकेट विथ योर मेंटर्स और कम्युनिकेट विथ योर फ्रेंड्स, कम्युनिकेट विथ योर टीचर, but at least communicate. The seventh skill is self-motivated. So it is very important if you are thinking that you are a self-motivated person, because अभी के टाइम में बिल्कुल बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ये सोच के चलते हैं कि हम सेल्फ मोटिवेटेड है। बिकॉज अगर आप ऐसा सोच के चलोगे तो आपकी कोई टास्क हो नहीं सकता है कि आप टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो अपने टास्क को लेके। आप खुद हमेशा रेडी रहते हो कि यस आपको ये करना है एंड यू कैन डू इट। ये आपको हमेशा अंदर से आवाज़ें आती है डैट यस तनु यू कैन डू इट, यस जो भी आपका नाम है मैं आपके तरफ से बोल रही हूँ, यस यू कैन डू इट। सो ऑलवेज ट्राई एंड ऑलवेज थिंक दैट you are a self-motivated person. The eighth skill is initiative. Initiative in nature. Always try that you have always in initiative in nature. आपके इंटर्नशिप में ये हमेशा होगा। आपको अगर कोई टास्क दिया जा रहा है, वहाँ पे आपके जो मेंटर होंगे वो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे कौन इनिशिएट करना चाहेगा इस टास्क को लेके। एट द टाइम क्या होगा, आप खुद देखोगे कोई भी स्टूडेंट इनिशिएटिव लेना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि वो पहले ही डर जाते हैं, ये रोल्स मिलेंगे, ये टास्क करना पड़ेगा, ऐसे मतलब बच्चों को समझाना होगा या फिर ऐसे खुद बहुत सारा टास्क करना होगा। सो वो पहले ही अपने माइंड में इतनी सारी लाइक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिल कर लेते हैं कि वो पहले ही डर जाते हैं। बट मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको कभी भी ऐसा मौका मिलता है, या वो आपके इंटर्नशिप पीरियड में हो या फिर वो आपके जॉब टाइम पे हो, ये जो मौका है वो बिल्कुल आप कभी मत खोना। ऑलवेज ट्राई टू टेक इनिशिएटिव। मैं हमेशा ऐसा करती हूँ, अगर मुझे कहीं से भी ऑफर मिलता है मैं कभी उसको मना नहीं करती हूँ, बिकॉज आई एम ऑलवेज थिंक दैट मैं उस चीज़ से कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखूंगी। सो ऑलवेज ट्राई टू टेक इनिशिएटिव and feel motivated. The ninth skill is creativity. So always try to think some creativity related to your task. Always try, because I must say that nowadays the topic creativity is very important in every sector. अगर आप एग्जाम्पल ले लो, अगर आप नॉर्मल इंटर्नशिप का अगर मैं एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूँ, बिकॉज हम इंटर्नशिप की ही टॉपिक शेयर कर रहे हैं, सो बेटर होगा यही कि हम इंटर्नशिप का एग्जाम्पल लें। सो अगर आप एग्जाम्पल लोगे कि कोई आपको एक पर्टिकुलर टास्क मिलता है, अगर फिनेंस में ही आपको टास्क मिल रहा है और उसका जो ड्यूरेशन है वो आपको 1 वीक दिया गया है कि विद इन अ वीक आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। आपके किसी 2 फ्रेंड्स को मिला, वहाँ पे क्या होता है कि जो एक ऐसा बंदा है जिसके पास क्रिएटिव माइंड है, लाइक वो क्रिएटिविटी कुछ सोच लेता है विद इन अ मिनट, विद इन अ आवर,
एंड जो आपका दूसरा फ्रेंड है वो लाइक जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें जैसे हम कोई भी पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करते हैं वो वैसे अपना टास्क कंप्लीट कर रहा है। सो यहाँ पे मेन डिफरेंस ये हो जाएगा कि जो टास्क कंप्लीशन का जो टाइम है, जो आपका क्रिएटिविटी फ्रेंड है उसका 2 दिन में ही टास्क कंप्लीट हो जाएगा, पर जो आपका अदर फ्रेंड है उसे पूरे वीक लग जाएंगे टास्क कंप्लीट करने में। वो इसलिए ये जो डिफरेंस आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एक आपका फ्रेंड है वो कुछ क्रिएटिविटी सोच रहा है अपने टास्क को कंप्लीट करने में, इसलिए उसका टास्क जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो रहा है। सो ऑलवेज ट्राई टू लर्न सम क्रिएटिविटी थिंग्स रिलेटेड टू योर वर्क। The last and the 10th skill is integrity. So basically what integrity means? Integrity means always try to accept your mistake and learn from your mistake. So internship में क्या होता है, अगर आपके मेंटर ने आपको कुछ टास्क दिया, at that time क्या होता है कि हमसे कुछ गलती हो जाती है। ऑब्वियसली गलती होती ही है, सबसे होती है, बट वहाँ पे क्या होता है कि कुछ फ्रेशर या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उस मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं एंड ट्राई करते हैं कि इस मिस्टेक को हम दोबारा नहीं करेंगे एंड इससे हम कुछ लर्न करेंगे। बट एट द सेम टाइम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को इतना सीरियस ले लेते हैं, अगर मैं बोलूँ तो वो अपने ईगो पे ले लेते हैं एंड वो इंटर्नशिप वो वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। सो ये मिस्टेक आप बिल्कुल कभी मत करना एंड ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। ये आपको आगे जाके बहुत बेनिफिशियल करेगा एट द टाइम ऑफ योर प्लेसमेंट। ओके, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। सो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स दैट ये वीडियो आपको कितना समझ में आया एंड ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।